Good evening, sir. Good evening, Abhinav. Yes, sir. Good evening, Harsh. So now, please Mute को copy करो. mute yourself. Yes. I don't know what is the problem, but both Abhinav and Harsh, there there are a lot of background sound. Means I don't know. You don't have a separate room, I believe, and you are attending classes, and members of your family they are talking and they are speaking and they don't care if sound is there or not. They don't bother. Okay. Anyway, fine. So we were discussing MS Office Word, Microsoft Word 2010, and I was trying to demonstrate with the help of my laptop or one another laptop, and there were lots of problems. So what I have done, I have searched for a document. This document is having detail of MS Word with pictures, so that you can relate, you can say visualize, okay, how we have to operate MS Word. And also this PDF I will send you. With the help of this PDF, you can actually practice. You can actually practice afterwards, right? So 1 minute. Let me open the document of both of you. You have sent me documents. So to the principal, ABCD School UAE, subject application for leave. Respected sir, with due respect, I beg to state that I am the student of class 7th in a school. I have required, okay, 1 day leave because of a function in my house. I need to accompany with my grandma for shopping regarding to upcoming function in my house. Kindly allow me a leave for 1 day. Date this. Yours obediently, Harsh Raj Thakur. So this is good, except there are many spelling mistakes and grammatical mistakes that we'll discuss afterwards. That is not required. But otherwise, the this thing is okay. Now let me see. Abhinav has sent me a link of document, and I'm opening it. He has saved in OneDrive, I believe. Okay, so to the principal, Madonna Primary School, Darbhanga. Application to the principal for asking of 2 days leave. Date is there. And dear sir, miss, most of the way I'm here to say that I want 2 days leave from this because I'm going for my dental checkup to Patna. Therefore, I request you to kindly grant me. So, okay, after seeing both of your documents, I'm very happy that you know the basics. So basic is not a problem. Fine. Now, only thing is that we will go for the advanced thing and we'll try to understand all tabs and buttons of MS Word. So now you can see the screen. Screen पे लिखा हुआ है कि Microsoft Word 2010 icon also is given. Is the word processing program of the Microsoft Office suite. इसको हम suite बोलते हैं because all together means Word, Excel, PowerPoint, उसके बाद एक आपका वन नोट है, MS Access है, right? So ये सबको मिला करके we call it Microsoft Office Suite. Collection of all these programs is called. That allows you to create documents and reports. वर्ड का काम क्या है? डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करना. ये आपको मालूम है. जब आप उसको ओपन करते हैं, यू गेट अ प्लेन शीट. उस प्लेन शीट पे आप डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट टाइप कर सकते हैं. नाउ गोइंग फर्दर. सो दिस इज द मेन स्क्रीन. जब भी आप MS वर्ड 10 खोलेंगे तो ये आपका सामने स्क्रीन सामने आने वाला है. ऐसा एक ब्लैंक शीट आएगा और ऊपर में यू विल हैव ऑल द मेन्यू. कहाँ से आपको क्या क्या करना है. कुछ हमने डिस्कस भी किया था इन द लास्ट क्लास कि कहाँ से हमें लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट का साइज को छोटा बड़ा करना, उसको हाईलाइट करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, राइट, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना. सो ऑल दीज बटन्स आर ऑन द टॉप. आप उसको देख सकते हैं. ये मेन स्क्रीन है. जब भी आप खोलेंगे दिस स्क्रीन इज गोइंग टू कम. फाइन. इसकी हेल्प से यू कैन डू अ प्रैक्टिस ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स.
आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ से हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरफेस, नीचे का स्क्रीन कट कर दिया गया है। अब हम समझेंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब। फाइन, तो अब हम समझते हैं कि ये सब क्या क्या चीजें हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे लेफ्ट में जो ग्रीन से सर्किल किया उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसकी अच्छी बात क्या है कि ये सारे जो दिख रहे हैं उसमें डब्ल्यू, एक उसमें फ्लॉपी डिस्क का आइकॉन दिख रहा है, एक बैक जाने का सिंबल दिख रहा है, ये आपका हमेशा विजिबल रहता है। दिस इज ऑलवेज विजिबल। फाइन, और हम इसमें अपने फेवरेट टूल को ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि नहीं इसमें मुझे अपना एक और टूल को ऐड करना है, उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन बटन है, उसको दबा करके हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। सो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद आते हैं उसके बगल में रिबन टैब, जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, जो ये सारे बटन हैं इसको हम बोलते हैं रिबन टैब। सो रिबन की तरह लंबाई में ये सारे के सारे टैब वहां पर अरेंज किए हुए हैं, सो दीज आर कॉल्ड रिबन टैब्स। और आप सबसे राइट में आप देखेंगे ब्लू कलर से एक एक सिंबल को राउंड किया हुआ है, वहां लिखा है हाइड द रिबन। अगर मुझे इस रिबन को हाइड करना है, किस लिए हाइड करना है? ताकि मुझे ज्यादा स्पेस मिले काम करने के लिए, तो उस बटन पे क्लिक करके हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। नाउ डाउन में आएंगे, नीचे में सबसे लेफ्ट में लिखा है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स। और आप पाएंगे कि जो आपका डार्क ब्लू से जो एक हल्का सा दिख रहा है हमको, छोटा सा एक टैब दिख रहा है, वो आपको एक, दो, मुझे लगता है यहाँ भी एक है, तीन, तीन चार ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर आइकॉन्स दिए हुए हैं। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर लॉन्चर है। और इनका काम क्या है कि जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज हैं, टूल्स हैं, उस टूल्स के बारे में आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। उसको दबाने से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट ऑल दोज टूल्स। उसके बगल में जो येलो में है रिबन ग्रुप्स, यानी कि एक रिबन को आप खोलेंगे तो आपको ये सारे, सपोज आपने होम खोला तो होम में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले पेस्ट दिख रहा है, देन आपका फोंट वाला ऑप्शन है, देन आपका अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, देन आपके स्टाइल्स का ऑप्शन है, और सबसे लास्ट में एडिटिंग का ऑप्शन है। सो क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, अगर आप नीचे देखेंगे नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ये सारे के सारे उस रिबन के ग्रुप्स हैं। मतलब वो पूरा का पूरा पैराग्राफ एक ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप है, फोंट एक ग्रुप है। यानी कि फोंट एक मेन ग्रुप है, उसके अंदर फिर आपका फोंट का स्टाइल, फोंट का साइज, उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, क्रॉस करना, हाईलाइट करना, वो अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। बट उसको पूरा एक साथ हम बोलते हैं रिबन ग्रुप। सो ये पांच चीजें आपको पहले वाले स्लाइड में आपको दी हुई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वंस दिस क्लास इज ओवर, यू कैन ओपन दिस पीडीएफ एंड आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे एक एक बटन को खोल करके आप इसको क्रॉस चेक कीजिए। बाद में हमको नाम याद रहेगा नहीं रहेगा, इट्स ओके, बट एटलीस्ट एक बार हमने ट्राई किया कि मुझे इन सब के नाम भी मालूम हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ कस्टमाइजिंग द क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने आपसे कहा था कि क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपने हिसाब से टूल्स को ऐड भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो सबसे राइट में एक बटन है जहां पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जहां जहां आपको लेफ्ट साइड में टिक मार्क लगा हुआ है, यानी कि वो सारे बटन्स वहां पर हैं, तो आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आप उस पर टिक करके या टिक को निकाल करके आप वो काम कर सकते हैं। जितने कमांड्स आपको ऊपर में दिए हुए वो मेन कमांड्स हैं, और नीचे में आप देखेंगे सेकंड लास्ट बटन, सेकंड लास्ट बटन में लिखा हुआ है मोर कमांड्स। वहां से आपको और भी कमांड्स मिल जाएंगे ऐड करने के लिए।
सो ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार कैसा होना चाहिए, ये आपके कंट्रोल में है विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉप डाउन। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिख रहा है कि अब ये आ गया है पेज लेआउट वाले रिबन पे आया है। उस रिबन में होम इंसर्ट के बाद है पेज लेआउट, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है कि आपका सबसे लेफ्ट में देखिए थीम कैसा रहेगा, मार्जिन कैसा रहेगा। मार्जिन का मतलब लेफ्ट में हम कितना स्पेस छोड़ेंगे, राइट में कितना स्पेस छोड़ेंगे, टॉप पे कितना स्पेस रहेगा, बॉटम पे कितना स्पेस रहेगा, वो मार्जिन है। ओरिएंटेशन, पेज के किस तरफ हमारा टेक्स्ट रहेगा, हमारा टेक्स्ट ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, उसमें कॉलम्स आएंगे क्या, राइट। वाटर मार्क उसमें डालना है क्या। वाटर मार्क आप डालेंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड में आपको एक टेक्स्ट डालने का ऑप्शन मिलेगा। सपोज आपकी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, आप चाहते हैं कि मेरे हर पेज में XYZ कंपनी लिखा हुआ हो, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर मार्क आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। पेज का कलर क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, इंडेंटिंग मतलब क्या हुआ, हम उसको कोई कितना बड़ा उसका हम इंडेंट रखेंगे, साइज रखेंगे। उसके बाद स्पेसिंग क्या होगी, मतलब एवरी अलाइनमेंट कैसा रहेगा, एवरीथिंग ऑल लेआउट आपका सारा यहाँ पर डाला हुआ है। फाइन। वापस अगर आप देखेंगे सबसे नीचे, तो सबसे लेफ्ट में है थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वो डायलॉग ग्रुप्स हैं, ये पूरे ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप के अंदर में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आपको समझ में आता है कि अगर मुझे पेज सेटअप करना है तो कौन कौन से कमांड हैं, अगर मुझे बैकग्राउंड ठीक करना है तो कौन कौन से कमांड हैं, पैराग्राफ में कुछ करना है तो कौन सा कमांड है, अगर हम मुझे पूरा टेक्स्ट को अरेंज करना है तो कौन से कमांड है। फाइन। और वापस आप देखेंगे नीचे एक दो तीन चार पाँच छः, एक हेक्सागन के थ्रू आपको वापस एक दिखलाया गया है, वही जो हमने देखा था ना, वो डायलॉग बॉक्स। उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या खुलता है, डायलॉग बॉक्स खुलता है, उससे आपको एडिशनल जानकारियां आपको मिल जाती हैं। सो ये पेज लेआउट का उसने दिखलाया है, ये आपने देख लिया। फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें जब तक आप एक बार इस PDF के सहारे आप खुद से एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा सा आपका डाउट रहेगा। अब आ गया ये सीधा व्यू टैब पे, पेज लेआउट के बाद व्यू पे आया है, और व्यू में दिखला रहा है कि जैसे ही आप व्यू को ओपन करते हैं, सबसे जो पहला आपका डिफॉल्ट है वो प्रिंट लेआउट, यानी कि प्रिंट का लेआउट कैसा रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, राइट। उसके बाद उसको कितने इंडेंटिंग में हमें समेटना है, मतलब आप सब कुछ उस लेआउट के थ्रू आप कर सकते हैं, और आप माउस के हेल्प से भी उसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बगल में आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट व्यू, उसको उसने वायलेट से राउंड किया है। डॉक्यूमेंट व्यू में आप लेआउट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे बगल में लिखा हुआ है वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, उसके बगल में है फुल स्क्रीन, ये सारे ऑप्शंस आपके पास में है। सो डॉक्यूमेंट व्यूज है, उसके नीचे बगल में देखिएगा शो लिखा हुआ है, उसके बगल में जूम लिखा है, फिर विंडो है, और फिर मैक्रोज है। तो ये सारे अलग अलग इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको मैंने भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि मैक्रोज। मैक्रोज मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि मैक्रोज शायद नॉर्मल कंप्यूटर के इसमें इस्तेमाल में नहीं आता है, बट आप में से कोई अगर बहुत ज़्यादा एडवांस में काम करेगा कंप्यूटर पे, तो देन यू मे लर्न अबाउट मैक्रोज ऑल्सो। उसके बाद बोल रहा है कि जो नीचे अगर आप आएंगे, यू कैन ऑल्सो चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू बाय क्लिकिंग द व्यू आइकॉन्स along द बॉटम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो आपका टास्क बार है नीचे की तरफ, उस नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 जो ग्रीन से कवर किया हुआ है, ये 5 आइकॉन सिंबल आपको नीचे मिल जाएंगे। आप वहां पे क्लिक करके भी अपने डॉक्यूमेंट का व्यू, डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज कर सकते हैं। उसके बगल में अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है 100%, वो आपके उस लेआउट के साइज को बढ़ाने घटाने के लिए है। 100 से लेकर के उसको आप आगे, अभी 100 पे है बिल्कुल बीचों बीच में, उसको आप आगे बढ़ाएंगे प्लस की तरफ तो बड़ा हो जाएगा, पीछे बढ़ाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। फाइन। तो ये व्यू टैब की बात हो गई। अब आते हैं हम बैक स्टेज व्यू।
सबसे पहले वाले स्क्रीन पे लिखा था, देखो आप, यहाँ पे आता हूं मैं, इसमें लिखा था कि फाइल टैब, नीचे आप देखेंगे तो लिखा है फाइल टैब विच ब्रिंग्स अप द बैक स्टेज व्यू, यानी कि पीछे की तरफ का व्यू आता है फाइल से, और यहाँ उसने वही दिखलाया है। सबसे लेफ्ट में फाइल पे आप क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आपका बैक स्टेज व्यू आ जाएगा। और बैक स्टेज व्यू में क्या क्या ऑप्शन हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपके पास में हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एक रिसेंट में आपको जितने भी आपने फाइल हाल में ओपन किए हैं, रिसेंटली ओपन किए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। यानी आपको बार बार खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप रिसेंट में आकर के अपने जो पहले, जो आपके लास्ट 5, 6, 7 आपके जो फाइल हैं, आप उसको यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन। सेव करेंगे तो जहां पर था वहीं पर सेव हो जाएगा। सेव एज करेंगे तो कहीं आपको नई जगह पे सेव करना है, किसी आपको ड्राइव को चेंज करना है, डेस्कटॉप पे लेकर के आना है, किसी पेन ड्राइव में सेव करना है, तो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। फाइन, ये सारे ऑप्शंस आपके इस बैक स्टेज व्यू में आपको मिलते हैं। ओके, Excuse me, sir. बोलिए। Sir, if we have saved any file in the Microsoft Office and sir we have some changes in that file and we have to save that file again, so sir, what will we press, save or save as? See, if you don't want to change the place, यानी जहां पर वो सेव है आप चाहते हैं कि वो वहीं पर सेव हो जाए, मींस डॉक्यूमेंट पहले मान लीजिए एग्जांपल के लिए डी ड्राइव में सेव था, आपका एक एमएस वर्ड का फाइल डी ड्राइव में सेव है, आपने उसको ओपन किया, यू हैव डन सम चेंजेस एंड यू वांट टू सेव इट, तो सीधा सेव कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा वहां पर। बट आपको लगता है कि नहीं, मैंने उसको डी ड्राइव में रखा था, मुझे उसका नाम चेंज करना है, मुझे उसके ड्राइव को चेंज करना है, कहीं और लेकर के जाना है। सो इन केस ऑफ चेंजिंग द नेम, चेंजिंग द ड्राइव यानी कि प्लेस, तो आपको करना पड़ेगा सेव एज। अगर आपका जो नाम था, जो जगह था, वहीं पर सेव करना है तो ओनली सेव। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये आपका फाइल में ही जो है आपका ऑप्शन है न्यू, और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया सबसे जो पॉपुलर वर्ड का जो फॉर्मेट है, दैट इज ब्लैंक डॉक्यूमेंट। वहां से आप खोलेंगे एक सिंगल शीट आपको मिल जाती है, बट आप देखेंगे उसके बगल में क्या क्या है, ब्लॉग पोस्ट, माई टेम्पलेट, नीचे आएंगे एजेंडाज, सर्टिफिकेट्स, ब्रोशर्स, कार्ड्स, कैलेंडर्स। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इन अलग अलग फॉर्मेट में भी आप उसको ओपन करके उसमें आप काम कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू क्रिएट योर विजिटिंग कार्ड, आपको अपना विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड क्रिएट करना है, तो आपके पास ऑप्शन है बिजनेस कार्ड का, वहां से ओपन कर लीजिए, और उसमें बहुत सारे आपके ग्राफिक्स हैं, डिजाइनिंग है, फोंट हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। So you have so many options. You can make diagram, envelope, fax, flyers. मतलब आप क्या नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप यहाँ से आकर के, आई विल सजेस्ट कि आप आकर के आप सारे ये अलग अलग जो टेम्पलेट, उसको बोलते हैं टेम्पलेट, यानी कि अलग अलग डिजाइन, इसको आप ओपन करके आप देखिए कि कौन कौन से डिजाइन इसमें अवेलेबल हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका एक ओवरऑल आइडिया बनेगा कि बिजनेस कार्ड कैसे बनता है, कैलेंडर कैसे बनता है, ब्रोशर कैसे बनता है, फाइन, सर्टिफिकेट्स कैसे बनते हैं, वो सब यहाँ से ही बनते हैं। जो लोग इनको बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं और उसको प्रिंट करके हमसे वो चार्ज करते हैं। अगर हमारे पास वो एक्सपर्टीज है, हम खुद इसको बना सकते हैं। ओके, आगे आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए, ये आप हम बात कर रहे थे, अब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ब्लैक से पूरा राउंड किया हुआ है, ये नेविगेशन पेन है। ये बताता है आपको कि भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। सबसे ऊपर क्या है, रिसेंट प्लेसेस, यहाँ भी आपको दिया हुआ है, यानी जो आपने हाल में ओपन किया है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपका एक, उसको हम बोलते हैं ब्रीफकेस, एक ब्रीफकेस है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, पॉडकास्ट है, वीडियोस है।
ये सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं, तो आप म्यूजिक को म्यूजिक में, पिक्चर को पिक्चर में, पॉडकास्ट को पॉडकास्ट में, यहाँ से आपको वो दिख जाएगा, क्विक आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे तो आपको अब दिख रहा है कंप्यूटर में लोकल डिस्क सी। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई और डी ई एफ वगैरह नहीं है, अदरवाइज सी के नीचे डी ई एफ भी आपको दिखता, बाकी ड्राइव भी आपको दिखते। और उसके नीचे आपको जो दिख रहा है पब्लिक के मिशेल एंड वर्क, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी यहाँ से आप किसी कॉमन सर्वर से आप डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है आइकॉन दिख रहा है, आइकॉन देख कर समझ में आ रहा है कि ये इस कंप्यूटर पे नहीं है, बट ये एक लिंक है जिससे आप किसी सर्वर पे जाकर के वहां से फाइल को ओपन कर सकते हैं। और जो भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके जो बगल में आपको दिख रहा है नेम, डेट मॉडिफाइड एंड टाइप, आपको उसके अंदर में कौन कौन से फाइल हैं वो आपको यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं और काम करके उसको सेव या सेव एज आप कर सकते हैं। फाइन, तो ये ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट हम देख चुके हैं ना, ये तो हम देख चुके हैं, सॉरी ये हम देख चुके हैं और डॉक्यूमेंट हो गया। हाउ टू ओपन डॉक्यूमेंट, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला स्लाइड है। हम सबको मालूम है कि हम में से हर आदमी जो है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए उस पर अपना माउस ले जा करके डबल क्लिक करता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन है, आप उसको एक सिंगल क्लिक करके फिर राइट क्लिक कीजिए, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। या फिर आप उसको क्या बोलते हैं, जब आप जाएंगे फाइल पे, फाइल में न्यू का ऑप्शन है, उसमें ओपन का ऑप्शन है, ओपन के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप वहां से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट जो सिंपल सिस्टम है वो है डबल क्लिक एंड ओपन। सेव करने के लिए आपने कहा था दो ऑप्शन है, सेव एंड सेव एज। अगर मुझे सिर्फ जहां पर था वहीं पर सेव करना है तो मैंने सेव कर लिया। अगर मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, नाम चेंज करना है, ड्राइव चेंज करना है, डॉक्यूमेंट का आप बोलते हैं एक्सटेंशन बोलते हैं जिसको, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DOCX। तो जितने आपके ओल्ड वाले जो फॉर्मेट्स है उसमें आपको, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको सेव करना है 97 के डॉक्यूमेंट में सेव करना है, के स्टाइल में सेव करना है, कि DOCX जो है आपका वो रिसेंट वाला है उसमें सेव करना है। कहीं कहीं पे आपको 93 भी मिल जाएगा आपको ड्रॉप डाउन में। यानी कि आपको किस वाले फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो ऑप्शन भी आप निकाल सकते हैं। और नीचे आपका एक और ऑप्शन है सेव एंड सेंड। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट को मुझे सेव करके किसी को मेल करना है या किसी को किसी क्या बोलते हैं ड्राइव पे शेयर करना है, तो हमारे पास सेव एंड सेंड का ऑप्शन भी है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो सेव करने के साथ साथ वो आपको सेंड करने का ऑप्शन दे देगा कि आप किस तरीके से इस फाइल को सेंड करना चाहते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन था अदर्प का, वो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन में है कि क्लिकिंग सेव, ओनली सेव पे क्लिक करने से क्या होगा कि इट सेव्स योर डॉक्यूमेंट टू अ डिफॉल्ट लोकेशन। डिफॉल्ट लोकेशन मतलब क्या हुआ, जहां था वहीं सेव हो जाएगा, कोई चेंज उसके अंदर में नहीं आएगा। अब ये आपका ऑप्शन है, देखिए जो हमने कहा था ना कि जब आप सेव करने जाएंगे क्या क्या ऑप्शन है, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, PDF, XPS, वेब पेज, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन में अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। अब आपको अगर देखना है कि इसमें से कौन से फॉर्मेट में क्या होता है, तो प्लीज आप कुछ टाइप कीजिए, उसके बाद आप सेव करते जाइए वन बाय वन करके और चेक कर लीजिए किस किस में क्या होता है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। फाइन, ये हो गया हमारा। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आज बिकॉज PDF बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हम सब चाहते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट शेयर करना हो तो हम उसको PDF में कन्वर्ट कर दें। तो सेव एंड सेंड के समय में आपके पास ऑप्शन है, देखिए सेव टू शेयर पॉइंट सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, यानी आपने टाइप कर दिया और सीधा आपने एज ए ब्लॉग उसको पोस्ट कर दिया। और नीचे आपका ऑप्शन है क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट। ये दोनों के दोनों दो अलग अलग प्रोग्राम है, PDF और XPS। आप इसमें भी इसको सेव कर सकते हैं एंड देन यू कैन शेयर इन व्हाट्सएप और ईमेल एज ए PDF। जैसे कि मैं आपको जो भेजता हूँ सारे क्लासेस के जो प्रेजेंटेशंस हैं,
तो मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके तब आपको मैं शेयर करता हूं, ताकि आपके लिए उसको समझना खोलना आसान हो। अब हम आते हैं वापस एक बार होम टैब पे और हम देखते हैं कि स्टाइलिंग करने का हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी चेक किया था कि हम अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहीं पे आपके पास कट पेस्ट करने का ऑप्शन भी है। सबसे जो लेफ्ट में है क्लिपबोर्ड, वहाँ पे आप देखिए पेस्ट है, उसके बगल में जो कैंची है वो कट करने के लिए है, फाइन। उसके नीचे पेंट करने के लिए कुछ आपको उसको हाइलाइट करना है, उसके लिए ऑप्शन है। सो ये सारे ऑप्शंस आपके क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हैं, उसके बगल में फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, पैराग्राफ में चेंज करने का ऑप्शन उसके बगल में है और स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन उसके पास में है, फाइन। अब ये बोलता है कि जब भी आप सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बगल में जो आपको दिख रहा है सबसे सबसे एक मिनट जाइए, लेट मी फाइंड आउट दैट बटन एनोटेट। ओके, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ओके, ये जो बटन दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे तंग ना करे, आप पाएंगे, आप जब भी काम करते होंगे अपने MS ऑफिस पे, तो ऐसा अपने आप आकर के आइकॉन आपके बगल में आके खड़ा होता होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यूज स्मार्ट कट एंड पेस्ट। इसको अगर आप अनक्लिक कर देंगे तो ये आना बंद हो जाएगा, और इसको अगर आप क्लिक में रखेंगे तो ये आपको आकर के ऑप्शन देता रहेगा। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ देखिए बुलेट्स एंड नंबर डालने के लिए है, बुलेट्स डाल सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, इंडेंटिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया A to Z। सपोज मेरे पास वर्ड में 5 वर्ड लिखे हुए हैं, एक A से है, एक D से है, एक H से है, एक Z से है। सॉर्टिंग करेंगे तो उसको हम A to Z या Z to A हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, फाइन। अलाइनमेंट कर सकते हैं, लाइन की स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर, मतलब आप क्या नहीं कर सकते हैं अपने इन सारे टूल्स के थ्रू, अगर आप इसको सो व्हाट इज माय सजेशन इज दैट कि आप इन सबको ट्राई कीजिए। जो आपको याद रह जाएगा इसका मतलब कि वो ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला बटन है, वो इंपॉर्टेंट है। और जो आप भूल जाएंगे इसका मतलब कि वो ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार इस PDF की हेल्प से अपने वर्ड पे जाकर के आपको मेरे ख्याल से हर एक बटन को चेक जरूर करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्या है हमारे पास नेक्स्ट। अब ये आपका पेज सेटअप हमने देखा था, उसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, वाटरमार्क, पेज बैकग्राउंड में अगर कुछ करना है तो वाटरमार्क, पेज का कलर क्या होगा, पेज में बॉर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब चीजें आपको यहाँ से हो जाएंगी। अब फाइनली हमने जब सारा काम कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में, देन फाइनली आई हैव टू प्रिंट। तो हम यहाँ उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं अपने इसको। उसके बाद नेविगेशन बटन है। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा था मुझसे अभिनव ने कि सर अगर आपके इसमें क्या बोलते हैं लेटर में बहुत सारे प्रिंसिपल लिखे हों और मुझे सारे प्रिंसिपल को कन्वर्ट करना हो टीचर में, तो क्या मेरे पास कोई बटन है? तो ये देखिए, ये इस पेज पे लिखा हुआ है आपका सबसे लेफ्ट में। अगर आप देखेंगे तो आपको एक बाइनोक्यूलर है, एक दूरबीन लगी हुई है, उस पर लिखा है फाइंड, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस। यानी आप यहां जाएंगे, फाइंड में आप लिखेंगे, Where, sir? सबसे राइट में देखो, आप सबसे राइट में Where I can't see it. आपको स्क्रीन दिख रहा है अभिनव? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दिखा आपको सबसे राइट में, देखो आप Yes, sir. सेलेक्ट फाइंड अंडर द एडिटिंग ग्रुप, उसमें लिखा हुआ नीचे में एडिटिंग ग्रुप है वो। अच्छा एक मिनट जो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे और डिटेल में दिया हुआ है, ये देखो अब आपको दिखा फाइंड एंड रिप्लेस। जहां आप उसको क्लिक करेंगे दिस विंडो विल ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। तो फाइंड व्हाट, तो आप वहां पे लिख देंगे प्रिंसिपल, एंड रिप्लेस विथ टीचर, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक झटके में पूरा का पूरा पेज का हो जाएगा रिप्लेस, और मुझे सिर्फ एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो ओनली रिप्लेस आई विल पुश। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे अचानक से याद आ गई कि अगर आप देखते होंगे तो फाइंड में D अंडरलाइन है, रिप्लेस में P अंडरलाइन है, गो टू में G अंडरलाइन है।
ओके, नीचे देखो आप, मोर में एम अंडरलाइन है, वापस रिप्लेस में आर अंडरलाइन है, रिप्लेस ऑल में ए अंडरलाइन किया हुआ है, फाइंड नेक्स्ट में एफ अंडरलाइन किया हुआ है। फाइन, ये अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? जो बताएगा वो एक्सपर्ट है भाई। कौन बताएगा मुझे ये सारे अंडरलाइन क्यों किए हुए हैं? अभिनव, एनी आइडिया? नो। हर्ष, एनी आइडिया? No, sir. ओके, अदर पता नहीं, अदर हाउ अदर प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, आई डोंट नो, बट अदर डू यू हैव अ डेस्कटॉप और लैपटॉप विथ यू? Yes, I have a laptop. यू हैव अ लैपटॉप, तो हैव यू चेक्ड कि ये फाइंड, रिप्लेस, गो टू सबका एक एक लेटर को अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? कभी आपने ट्राई किया टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन? नो, Yes, sir. Yes, sir. टेल मी। So find, replace are used for example, there are some words in the No. My question, paragraph we have. my question is that जितने भी ये बटन्स हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, मोर, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट, सबका एक लेटर को अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे कि फाइंड में डी अंडरलाइन है, रिप्लेस में पी है, गो टू में जी अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे मोर में एम अंडरलाइन है। तो ये अंडरलाइन क्यों है? No, sir, I don't know. ओके, तो आप अगर चाहते हैं फाइंड पे क्लिक करना, रिप्लेस पे क्लिक करना, तो आपको यूज करना पड़ेगा माउस, है ना? आप माउस से क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, यू आर वेरी फास्ट इन यूजिंग द कीबोर्ड, तो अगर आप सिर्फ अल्ट डी करेंगे, आपके कीबोर्ड पे एक अल्ट का बटन होगा, ALT, अल्ट बटन। अगर आप अल्ट डी करेंगे तो फाइंड खुल जाएगा, अल्ट पी करेंगे रिप्लेस खुलेगा, अल्ट जी खुलेंगे गो टू खुलेगा, अल्ट एम करेंगे मोर खुल जाएगा, अल्ट आर करेंगे तो नीचे वाला रिप्लेस खुलेगा, अल्ट ए करेंगे नीचे का रिप्लेस ऑल खुल जाएगा। सो आपको फास्ट करने के लिए आपको माउस टच ना करना पड़े। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, दे डोंट टच माउस, दे यूज ओनली कीबोर्ड। तो आपको अल्ट और वो लेटर टाइप कर दबाने से आपका वो टैब खुल जाएगा। फाइन, तो ये फाइंड व्हाट, रिप्लेस विथ जो अभिनव ने कहा था वो यहां पर डाला हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया टूल है, एक झटके में कोई अपने एरर को रिप्लेस करने के लिए। ओके, नाउ रिव्यू जो है वो आपका रिव्यू करने के लिए है कि मेरा स्पेलिंग एंड ग्रामर सही है कि नहीं, कोई मुझे डिक्शनरी चेक करना है क्या मुझे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है क्या मुझे कुछ अपने किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड में कुछ कमेंट डालना है मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन का ट्रैक चेंज करना है उसके बाद क्या मुझे और क्या इसमें है। बस ये सब मेन चीजें हैं, बाकी बहुत सी चीजें हैं, उतना तो कुछ हम लोग यूज नहीं करते हैं। फाइन, तो रिव्यू जो है वो लास्ट में रिव्यू करने के लिए है कि मुझे और कुछ चेंज करना है क्या। और जो आपका प्रूफ रीडिंग वाला जो पोर्शन है, यानी जो प्रूफिंग का ऑप्शन आपको कहां पर आया था, फाइल में शायद था मेरे ख्याल से प्रूफिंग का ऑप्शन, और सॉरी इसमें रिव्यू में आपका ऑप्शन था प्रूफिंग का। इसमें आप देखिए जो पहला ABC है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, थिसारस जो है वो आपका डिक्शनरी है, वर्ड काउंट उसके बगल में है कि कितने वर्ड काउंट्स आपके डॉक्यूमेंट में है, एंड ट्रांसलेट ऑप्शन है अगर आपको लैंग्वेज को चेंज करना है तो। ये आपको प्रूफ करने के लिए रिव्यू में ऑप्शन में आपको ये मिलता है। और फाइनली ये आपका इंसर्ट में मिलता है आपको, अगर आपको इंसर्ट करना है कवर पेज, तो आप पाएंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कवर पेज डालते हैं अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, कवर पेज, ब्लैंक पेज, आपको पेज के बीच में पेज ब्रेक करना है, उसके बगल में टेबल है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, सीधा आप अपना कोई वेबसाइट का लिंक आप यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। आपको बुकमार्क डालना है, आपको हेडर, टॉप पे आएगा हेडर, नीचे आएगा फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर के लिए लाइन,
डेट एंड टाइम, जो कुछ भी आपको इंसर्ट करना होगा वो सारा इंसर्शन आपका इंसर्ट टैब में जाकर के आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये इंसर्ट टैब, उसके बाद ये प्रूफिंग, ये रिव्यू टैब, फाइंड एंड रिप्लेस, देन प्रिंट कैसे करना है, पेज का सेटअप, पेज का बैकग्राउंड, पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग, उसके बाद अगर मुझे ये स्मार्ट कट एंड पेस्ट निकालना है तो उसका ऑप्शन है, अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग करने के लिए फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल्स, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सेव करना है उसका ऑप्शन आपके पास में है, सेव और सेव एज करना, सेव एंड सेंड करना, ओपन करना, और ओपन करने के लिए ड्राइव्स, जो नेविगेशन पेन है, ड्राइव है, वहां जाना, रिसेंट वाले से आपको क्लिक करना, न्यू डॉक्यूमेंट को निकालना, बैकस्टेज व्यू पे जाना, व्यू टैब में डॉक्यूमेंट को व्यू करना, उसके लेआउट को चेंज करना, उसके बाद आपका क्विक एक्सेस टूल बार को आपको चेंज करना, और ये सारे रिबन टैब्स, हाइड द रिबन, रिबन ग्रुप्स, ये सारे के सारे आपके ये मेन स्क्रीन पे हम आ गए। मतलब हमारे पास एक बहुत लंबा चौड़ा टास्क आ गया है प्रैक्टिस करने के लिए। फाइन। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है शायद शनिवार को, करेक्ट। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू कि आपके पास आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है। आई विल सजेस्ट कि आप आज से कल में, मतलब कल रात तक, आपको मैं ये पीडीएफ आज ही भेज दूंगा अभी, आप प्लीज सारे जितने भी इसमें कमांड्स एंड टूल्स दिए हुए हैं आप सबको एक बार आजमा के देखेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ आपको समझ में नहीं आया, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज, सर मुझे ये वाला पेज का नंबरिंग दिया हुआ है, टोटल देयर आर 25 पेजेस इन दिस पीडीएफ, जो भी पेज में आपको दिक्कत है प्लीज ड्रॉप के सर पेज नंबर 24 ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। सो आप क्या कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को, सारे डाउट्स को यू कैन राइट एट वन प्लेस, क्लिक द फोटो एंड सेंड मी। इससे फायदा क्या होगा कि बिफोर एक्सप्लेनिंग मैं खुद उसको एक बार एक्सप्लोर कर लूंगा। आप एक झटके में पूछेंगे तो बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन एप्पल, आप हैं इसमें विंडोज में है, तो मेरे लिए टफ हो जाएगा। बट अगर आप पहले से बता देंगे तो मैं उस सब का फोटो खींच करके उसका एक्सप्लेनेशन पहले से लिख के रखूंगा, तो समझाना मेरे लिए आसान रहेगा। सो आई वांट ऑल थ्री ऑफ यू कि आज से कल में आप इस पीडीएफ को एक बार पूरा रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने सारे डाउट्स को आप मुझे भेज दीजिए। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल क्लियर योर डाउट्स अगर कुछ है तो। अगर आपके पास डाउट्स नहीं है, आपका वर्ड कंप्लीट हो गया है, देन वी विल शिफ्ट टू MS Excel 2010। और मैं आपको बताऊं, आउट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्वीट, जो भी उसमें है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसके बाद आपका वन नोट, उसके अलावा आपका मेल, आउटलुक है, MS आउटलुक भी है, बहुत कुछ चीजें उसमें है। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको सीखना है वो है एक्सेल। एक्सेल एक बहुत ही शानदार टूल है आपके, खासकर अगर आपने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन की जिस कंपनी में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइन। सो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। हर्ष, एनी क्वेश्चन? और you will ask after practicing? Yes, sir, I will ask after practice. Okay. Abhinav, Sir, not any query. so you will also practice. So practice, जैसा कि मैंने जिस पे मैं काम करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा, Sir, when you will send the PDF? just after the class is over I'll send immediately. Okay, sir. Because मुझे मालूम है कि when you will start practicing, आपको इतना मजा आने वाला है सारे टूल्स को चेक करने में, बिकॉज आपके पास सबके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। सो प्लीज डू इट एंड प्लीज सेंड मी। Excuse me, sir. हाँ, अदर बताइए। This Microsoft Word we will do in Windows 10 or in Windows 7. See, if you have Windows 7 also, you can do this. थोड़ा बहुत लेआउट का चेंजेस होगा,